محمد عامر خٹک کو کمشنر ملتان تعینات کر دیا گیا۔ سیف طاہر رضا ہمدانی کو سیکرٹری صوبائی محتسب تعینات کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور عدنان محمود اوان کا تبادلہ۔ عدنان محمود اوان ڈپٹی کمشنر چکوال تعینات کر دیے گئے، جبکہ جمیل احمد جمیل ڈپٹی کمشنر راجن پور تعینات۔ ڈپٹی کمشنر عمر جاوید میاں والی تعینات۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن محمد طاہر ڈپٹی کمشنر ملتان تعینات۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سید موسیٰ رضا کا رحیم یار خان تبادلہ کر دیا گیا۔ علی انان قمر ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ تعینات کر دیے گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، محمد عامر خٹک کو کمشنر ملتان تعینات کر دیا گیا۔ سیف طاہر رضا ہمدانی کو سیکرٹری صوبائی محتسب تعینات کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور عدنان محمود اوان کا بھی تبادلہ۔ عدنان محمود اوان ڈپٹی کمشنر چکوال تعینات۔ جمیل احمد جمیل ڈپٹی کمشنر راجن پور تعینات۔ ڈپٹی کمشنر عمر جاوید میاں والی تعینات۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن محمد طاہر ڈپٹی کمشنر ملتان تعینات کر دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سید موسیٰ رضا کا رحیم یار خان ٹرانسفر۔ علی انان قمر ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ تعینات کر دیے گئے۔ اب آپ کو بتائیں، وفاقی حکومت کا 10 جون کو بجٹ پیش کرنے کا اعلان۔ پنجاب حکومت تاحال بجٹ کے لیے تاریخ مقرر نہ کر سکی۔ محکمہ خزانہ بجٹ کے لیے کوئی گائیڈ لائنز بھی حاصل نہیں کر سکا۔ وفاقی حکومت نے 10 جون کو بجٹ پیش کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ پنجاب حکومت تاحال بجٹ کے لیے کوئی تاریخ مقرر نہیں کر سکی۔ بجٹ تیار نہ ہونے سے صوبے کے مالی امور متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ پنجاب میں وزیر خزانہ نہ ہونے کی وجہ سے بجٹ تقریر بھی تیار نہیں ہو سکی، جبکہ مئی کا آخری ہفتہ آ گیا ہے، لیکن پنجاب کا بجٹ ابھی تک زیر التوا ہے۔ وزیر خزانہ کی نشست خالی ہونے سے محکمہ خزانہ بجٹ کے لیے کوئی گائیڈ لائنز بھی حاصل نہیں کر سکا۔ بجٹ تیار نہ ہونے سے پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبے بھی تاخیر کا شکار ہو جائیں گے۔ اب آپ کو بتائیں، پی ٹی آئی کے نائب کپتان شاہ محمود قریشی نے علیحدہ صوبے کے لیے ایک بار پھر جنوبی پنجاب کے عوام سے ووٹ کی اپیل کر دی۔ کہتے ہیں جنوبی پنجاب صوبہ تحریک انصاف ہی بنائے گی۔ وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے اپنی رہائش گاہ باب القریش پر میڈیا ٹاک کی۔ انہوں نے کہا کہ کل جنوبی پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوا، جس پر ملتان اور جنوبی پنجاب کے عوام کا مشکور ہوں۔ 2014 میں بھی ایسا جلسہ ہوا تھا، لیکن ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ کل گرمی کے باوجود عوام کا سمندر جلسہ گاہ آیا۔ کل جلسے کے اندر ایک اور جلسہ گاہ کے باہر دوسرا جلسہ ہوا۔ عمران خان صاحب اسی پنڈال میں 2014 میں بھی انہوں نے جلسہ کیا تھا۔ بہت بڑا جلسہ تھا۔ بدقسمتی سے ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے ہماری خوشیوں کو اس میں ایک اوس پڑ گئی، بالکل۔ لیکن الحمدللہ اس دفعہ جو ہماری آرگنائزنگ کمیٹی تھی، انہوں نے جتنی احتیاطی تدابیر تھی ان کو اڈاپٹ کیا، ڈورز کو ریموو کیا، اور لوگوں میں جو میں نے دیکھا 2-3 چیزیں، ڈسپلن بہت تھا۔ نائب کپتان کا کہنا تھا کہ انہیں کسی وزارت کی لالچ نہیں، بس علیحدہ صوبہ اگر بنوا پائے تو سمجھوں گا سیاست میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ نواز شریف نے بہاولپور صوبے کا نعرہ لگا کر اس خطے میں تقسیم پیدا کی کہ جو مجھے اللہ نے عزت دے دی ہے، مجھے اب کوئی عہدے کی یا وزارت کی طلب نہیں ہے۔ میں نے ایک خواہش ان کی خدمت میں پیش کی ہے، اور اگر وہ پوری ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں میری سیاست کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور وہ ہے جنوبی پنجاب صوبے کو ایک حقیقت کا روپ دینا۔ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ پہلی بار جنوبی پنجاب کے بجٹ کو کتابی شکل میں محفوظ کیا گیا۔ جنوبی پنجاب کو دارالخلافہ کے نام پر تقسیم کرنے والوں کی بڑی سازش کرنے والوں کو بے نقاب کروں گا۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ ملتان میں گزشتہ کئی ماہ سے ترقیاتی کاموں کو بریک لگ چکی ہے، جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ رکن صوبائی اسمبلی علی حیدر گیلانی کہتے ہیں جلد ترقیاتی کاموں کا آغاز کریں گے۔
मुल्तान में बेशतर तरक्याती काम ठप हो गए। लोकल गवर्नमेंट और हाईवेज के तहत होने वाले प्रोजेक्ट्स को ब्रेक लग चुकी है। रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी का इस हवाले से कहना है कि गुज़श्ता 3 माह से कोई तरक्याती काम नहीं हो रहे, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। कोशिश है मालियाती साल के इख्तिताम से पहले तरक्याती काम करवा लें। 3 माह से मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे जो हल्के में देख रहा था और डेवलपमेंट जितनी भी मुल्तान में हो रही थी उसको मैं ओवरसी कर रहा था, मैंने ये देखा कि पिछले 3 माह से कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। मैंने जो मीटिंग्स की हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के साथ और जो इंतज़ामिया है उनके साथ, मैंने तो उनको यही कहा है कि जो डेवलपमेंट पिछले अदवार में चल रही हैं आप उनको बिल्कुल कंटिन्यू करें, उनमें कोई ब्रेक नहीं लगनी चाहिए और जिसकी मर्ज़ी स्कीम है वो कंप्लीट करें, क्योंकि अगर स्कीम दरमियान में रुक जाए और किसी और जगह पैसा चला जाए तो ये नुकसान मुल्क का है। अली हैदर गिलानी का कहना था कि वो चाहते हैं यहाँ के फंड्स इधर ही लगाए जाएं। वो मुल्तान में तरक्की का दोबारा सफर शुरू करेंगे। इमरान खान की हुकूमत में महंगाई बढ़ी, जबकि वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ठोस इकदाम कर रहे हैं। महंगाई इमरान खान ने जाते जाते इस मुल्क में जो महंगाई का तोहफा दे के गया था, पिछले 3 साल में 4 सालों में आपने देखा है महंगाई किस तरह बढ़ी है। फूड इन्फ्लेशन हो, देहातों में इन्फ्लेशन हो, शहरी जो आबादियां हैं वहाँ पर महंगाई का क्या हाल था। तो ये एक तसलसल चलता आ रहा है। 4 हफ्ते की हुकूमत है, 4 हफ्ते में हमने कोशिश कर रहे हैं कि ये जो महंगाई का जिन है इसको काबू करें। पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली ने कहा, वजीर आला पंजाब अवाम को आटा समेत दीगर अशिया में रिलीफ फराहम कर रहे हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। आपको बताएं, बढ़ता दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी रुपए को ले डूबी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपए 61 पैसे महंगा होकर पहली बार 200 रुपए से तजावज कर गया। ये रिपोर्ट देखिए। बढ़ता दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी रुपए को ले डूबी। इंटरबैंक में हर रोज डॉलर की नई सतह कायम हुई। एक हफ्ते में अमेरिकी डॉलर 7 रुपए 61 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 192 रुपए 53 पैसे से महंगा होकर बुलंद तरीन सतह 200 रुपए 14 पैसे पर बंद हुआ। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर में 3.95% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुआशी माहिरीन का कहना है कि रुपए की गिरती कदर को रोकने के लिए फौरी मजीद इकदाम करने होंगे। अगर डॉलर ना रुका तो महंगाई का ना रुकने वाला तूफान आ जाएगा। डॉलर का जो रेट है इसका मेन बढ़ने की वजह सिर्फ और सिर्फ सियासी इस्तेहकाम है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा और सियासी पार्टियों में मुल्क को ठीक करने का जज्बा नहीं आएगा तो उस वक्त तक हमारी मईशत और हमारा रुपया अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा। दूसरी जानिब एक हफ्ते में यूरो 8 रुपए महंगा होकर 212 रुपए और बरतानवी पाउंड 11 रुपए महंगा होकर 250 रुपए 50 पैसे का हो गया। हफ्ते में इमाराती दरहम 2.20 रुपए महंगा होकर 52.20 रुपए और सऊदी रियाल 1.80 रुपए महंगा होकर 53.50 रुपए पर पहुंच गया। रवा माली साल 10 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात 98% इजाफे से 17 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान से सनतें मुतासिर, नई मशीनरी मंगवाना और नई सनतें लगना भी मुतासिर। रॉ मटीरियल की बढ़ती कीमतों से सनतें चलाने के लिए सरमाए की ज़रूरत भी बढ़ गई। डॉलर की कीमत बढ़ने से अशियाए खुरनोश महंगी से महंगी तर होती जा रही हैं। डॉलरों की बढ़ती कीमतों का असर सनतों पर भी हो रहा है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब उस्मान महमूद का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि डॉलर बढ़ने से सनतों में मशीनरी मंगवाने या नई सनत लगाने का काम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। रॉ मटेरियल महंगा होने के बाद सनतें चलाने के लिए सरमायाकारी बढ़ गई है। उन्होंने इंपोर्टेड आइटम पर पाबंदी लगाने के फैसले को खुशाइन करार दिया। आपको बताएं, मैपको इंतजामिया की नाअहली, सख्त गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने पसीने से शराबोर मुल्तानियों का पारा हाई कर दिया। शहरी इलाकों में बिजली घंटों गायब रहने लगी। रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में सख्त गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। गर्मी से सताए शहरी गैर इलानिया बिजली की बंदिश पर बिल बिला उठे। गर्मी इतनी ज़्यादा है, ये हुकूमत दावे तो बहुत बहुत बड़े करती थी, लोड शेडिंग कम कर देंगे, ये कर देंगे। इनके बस का रोग ही नहीं है हुकूमत चलाना, तो लिहाजा लोड शेडिंग पे कंट्रोल करें। गर्मी इतनी है, बच्चे स्कूल से आते हैं, इतनी आगे से लाइट नहीं है। शहरियों का कहना था कि लोड शेडिंग कंट्रोल करने के लिए हुकूमत कोई इकदाम नहीं कर रही, जबकि सख्त गर्मी में बिजली न होने से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है।
तकरीबन घंटा बिजली होती है, घंटा नहीं होती, घंटा होती है 2 घंटे नहीं होती, और बिल इतने आते हैं कि बंदा बिल दे या घर के किराया और अखराजात पूरे करे या घर का चूल्हा जलाए। गर्मी के सताए शहरियों ने मैप को हुकाम से बिजली की लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा इब्राहिम खान, मुल्तान। इंतजामिया और महकमा सोशल वेलफेयर की गफलत या अदम तवज्जुही शहरी किताब के मुताले से महरूम हो गए। बहावल नगर की इकलौती पब्लिक लाइब्रेरी की इमारत खंडरात में तब्दील हो गई। सतलुज पार्क बहावल नगर में 1970 में अवाम की सहूलत के लिए पब्लिक लाइब्रेरी कायम की गई। लाइब्रेरी में हजारों की तादाद में इंतहाई नादर, कीमती और तारीखी किताबों को जमा करके अवाम के मुताला के लिए रखा गया। शहरी लाइब्रेरी में आकर न सिर्फ इन कुतब से फैज याब होते थे, लेकिन मुनासिब देखभाल न होने की वजह से 1970 में कायम होने वाली ये लाइब्रेरी अब खंडरात में तब्दील हो गई और शहरी किताब के मुताला के शौक से महरूम हो गए हैं। ये बहावल नगर की एक आला तरीन लाइब्रेरी है। हम यहाँ पर आकर पढ़ने के लिए आते हैं, तो इसमें आला तरीन किताबें हैं और इस बिल्डिंग के खतरे की वजह से हम अब यहाँ पर नहीं आते, हम साहिब में बैठ जाते हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के जदीद दौर के बावजूद आज भी शहरी किताब पढ़ने के शौकीन हैं। सतलुज पार्क की लाइब्रेरी में रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों शहरी लाइब्रेरी में आकर न सिर्फ अपनी पसंद की किताब से मुस्तफीद होते थे, बल्कि तमाम मुल्की कौमी अखबारात का मुताला करते थे। तारीखी बिल्डिंग खंडरात में तब्दील किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकती है। सतलुज पार्क में 52 साल कबल तामीर होने वाली पब्लिक लाइब्रेरी एक तारीखी विरसा है। इसकी बहाली के लिए फौरी तौर पर इकदामात किए जाएं। 1970 में तामीर होने वाली बहावल नगर की कदीमी और तारीखी लाइब्रेरी मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से इस वक्त खंडरात में तब्दील है। अगर इंतज़ामिया चाहे तो इसकी मुनासिब देखभाल करके ये जो कुछ किताबों के शौकीन अफराद के लिए एक बेहतरीन सहूलत दस्तयाब हो सकती है। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावल। शहर ओलिया में मज़ारात पर तामीराती काम जारी। तारीखी मज़ार हजरत बीबी पाक माई पर 60% काम मुकम्मल कर लिया गया। खस्ता हाल बरामदे की छतें, सतून और दीवारें तामीर कर दी गईं। तारीखी मज़ार हज़रत बीबी पाक मई पर तामीराती काम गुज़िश्ता 1 साल से जारी है। खस्ता हाल बरामदे की छतें, सतून और नई दीवारें तामीर कर दी गईं। दीवारों पर कदीम नकाशी की गई है। टाइल्स को इनकी असल हालत में ही बहाल किया जा रहा है, जबकि ज़रूरत पड़ने पर नई टाइल्स भी लगाई जाएंगी। ये पुरानी दीवारें ये प्लस्तर उखेड़ के नया कर रहे हैं। ये जो टाइलें हैं पुरानी, ये भी उखेड़ के ये भी नहीं लगाएंगे, इनको सफा कर रहे हैं। जो अच्छी लगेगी वो यही रहेगी, जो ख़राब हो जाएगी वो नहीं लगा देंगे। ये फर्श है, ये भी तमीरात, ये भी नया हो रहा है। ऊपर वाला जो नए लगे हुए थे बार बार लगाते हैं लोग, वो निकाल दिए। जो पुराना था कदीमी वो दोबारा लगा रहे हैं। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से महकमा औकाफ को मज़ार हज़रत बीबी पाक माई की बहाली के लिए 1 करोड़ रुपए के फंड्स फराहम किए गए हैं। ये कदीम मज़ार है, यहाँ पे लोग बड़ी तादाद से आते हैं और यहाँ पे खुश होते हैं और यहाँ पे एक सायेदार जगह होनी चाहिए। ज़ायरीन ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि मज़ार के अहाते में बैठने के लिए सायादार जगह भी फ्राहम की जाए, ताकि दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन को सहूलत मिल सके। कदीम मज़ार हज़रत बीबी पाक माई पर तामीराती काम का आगाज़ होने पर ज़ायरीन खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। रोही की खबर पर एक्शन। मुल्तान की अहम सड़क नुसरत रोड की तामीर और मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। नुसरत रोड कैंट की मरम्मत का काम कुछ अरसे से तातुल का शिकार था। चीफ ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड मुल्तान चौधरी बाबर का कहना है, हाई कोर्ट से बोमन जी चौक तक सड़क मुकम्मल कर ली गई है। इस सड़क की तामीर से शुजाबाद रोड, कैंट बाजार समेत अहम इलाकों तक रसाई आसान होगी। ताजरों और मेंबरान ने कहा है कि नुसरत रोड की तामीर और मुरम्मत होने पर कंटोनमेंट बोर्ड के मशकूर हैं। इससे कैंट बाजार में कारोबारी सरगर्मियां बेहतर चल सकेंगी। रहीम यार खान के एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन माजिद अली कहते हैं, जिला में 4,70,000 एकड़ पर कपास की बिजाई हो गई है। किसान और जमींदार बिजाई के 25 दिन बाद छदराई का मरहला शुरू कर दें।
रहीम यार खान के एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन माजिद अली कपास की बेहतर पैदावार के लिए सरगर्म। कहते हैं कपास की बिजाई का मरहला माह अप्रैल में शुरू हुआ और माह मई के आखिर में मुकम्मल होगा। रवां साल जिले में कपास का टारगेट 5,63,000 एकड़ का है। 80% कपास की बिजाई का मरहला मुकम्मल हो चुका है। कपास की बिजाई के 25 रोज बाद छिदराई का मरहला शुरू किया जाएगा और पौधों के दरमियान फासला रखा जाए ताकि सफेद मक्खी को कंट्रोल किया जा सके। गुलाबी सुंडी के हमले की सूरत में पेस्टिसाइड्स का स्प्रे ना किया जाए बल्कि फूलों की तोड़ाई की जाए। मार्च के एंड से ही जिम्मेदारों ने कपास काश्त करनी शुरू कर दी थी और अभी तक जो है वो काश्त का अमल जो है वो जारी है। जिम्मेदार हजरात जो हैं इस साल जो है खुसूसी सफ़ेद मक्खी के पॉइंट ऑफ व्यू से छदराई करें, पौधे से पौधे का फासला थोड़ा ज़्यादा रखें। एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन माजिद अली का कहना था कि रवां साल कपास की फी एकड़ पैदावार बेहतर होगी जिससे किसान व जिम्मेदार खुशहाल होगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। चाय मुल्तानियों की रोजमर्रा जिंदगी का अहम हिस्सा है। शहर में कई ऐसे मकामात हैं जहां 24 घंटे चाय दस्तयाब है। मुल्तान समेत मुल्क भर में चाय का आलमी दिन चुस्कियां लगाकर मनाया जा रहा है। बिलाल न्याजी की रिपोर्ट देखिए। चाय वाहिद मशरूब है जिसे दुनिया भर में पसंद किया जाता है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में चाय को शौक से पिया जाता है। चाय के शौकीन अफराद शहर के मुख्तलिफ होटल्स का रुख करते हैं। हजूरी बाग रोड पर ऐसा ही चाय का एक होटल है जहां चाय के शौकीन अफराद का रश लगा रहता है। हम इंजॉय करते हैं चाय को, अपने दोस्तों के साथ आते हैं, रिलेटिव्स के साथ आते हैं। शदीद गर्मी के बावजूद भी हम चाय को इंजॉय करते हैं और दोस्तों से मज़ेदार गपशप होती है चाय के साथ। और आज आलमी दिन है। शहरियों का कहना था कि चाय के बहाने दोस्तों के साथ गपशप हो जाती है और पूरे दिन के हाल हवाल भी बांट लेते हैं। उनका मजीद कहना था कि चाय बारिश के मौसम में भी ज्यादा अच्छी लगती है जबकि गर्मी में चाय पीने का अलग ही मजा है। बड़ी लोग आते हैं, यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ चाय पीने के लिए। शौकीन लोग खास करके दिन को रात को बड़ी शौक से आते हैं। हमारे पास पूरा एक सिस्टम बनी हुई है। शहरियों का मजीद कहना था कि चाय थकावट को दूर करती है और उनको तरोताजा करती है। चाय पिए बगैर वो रह ही नहीं सकते, इसलिए वो चाय को पसंद करते हैं। शदीद गर्मी के बावजूद भी मुल्तानी होटल्स पर पहुंचकर रोजाना चाय पीते हैं और खूब गपशप लगाते हैं। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान।